my dear students. Yesterday we discussed about the limit, continuity, differentiability of function of a complex variable. But today we will discuss about the analytic function, necessary condition for object to be analytic. Necessary condition for object to be analytic means we have to prove that Cauchy-Riemann equation in Cartesian form. This is the necessary condition for a function object to be analytic. Now the third point is sufficient condition for object to be analytic. In this sufficient condition for object to be analytic, we have to prove that in the last we have to prove that f dash z is equal to del u by del x plus I del u by del x. F dash z means the derivative of the function object. F dash z is equal to del u by del x plus I del u by del x. We use this result actually in most of the numerical questions. We use this result here, so we have to discuss here f dash z is equal to del u by del x plus I del u by del x. And the last in fourth point, we have to prove that Cauchy-Riemann equation in polar form. So now let us start with the analytic function, its definition. So first we discuss the analytic function. Analytic function की definition को हम लोग इस तरीके से explain करेंगे. If a function which is single valued and if it is not only differentiable at any point but also in its neighborhood. If any single valued function means for any value of z, if there exists only one value of z, that means that function is known as single valued function. किसी दिए गए z की एक वैल्यू के लिए अगर हमें w की केवल एक वैल्यू मिलती है तो ऐसा फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है. तो इफ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन which is not only differentiable at the point z0 but also its all points in the neighborhood of z0, then that function is said to be analytic at the point z0. तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी है? जरूरी कि फंक्शन का सिंगल वैल्यूड होना जरूरी है और वो किसी पॉइंट z0 पे ही नहीं बल्कि z0 के नेबरहुड में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उस हर पॉइंट पे फंक्शन आपका अगर डिफरेंशिएबल है तो आपका फंक्शन ये कहलाएगा कि फंक्शन उस पॉइंट z0 पॉइंट पर एनालिटिक है. So this is the definition. For example, we can take fz is equal to e to the power z. Simply we can say that this function fz is equal to e to the power z. We have, if we differentiate it, then we get f dash z is equal to e to the power z. We can say here e to the power z function is not only differentiable at the point z0 because at z is equal to 0, this is e to the power 0, e to the power 0 is equal to 1, numerical value is always differentiable. So this function is known as analytic function because it is not only differentiable at the point z0 but also in its neighborhood of all the points. So simply we can say that f z is equal to e to the power z is a analytic function. Now we discuss the next point, necessary condition for fz to be analytic. Necessary condition for fz to be analytic. Actually this is CR equation in Cartesian form. This is the proof of Cartesian equation in polar form. Its statement is very important. Now, what is the statement for the necessary condition of object to be analytic? If a function of z is equal to uxy plus ivxy, then its component functions u and v, both are component functions are already we have to discuss in previous कि u is function of x and v is function of x. u और v दोनों जो component functions हैं वो किन्हीं दो वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं. तो क्या कहता है स्टेटमेंट? नेसेसरी कंडीशन में कहता है कि अगर कोई फंक्शन f z इज इक्वल टू uxy प्लस ivxy, अगर ये हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है किसी रीजन R में, दिस फंक्शन f z इज इक्वल टू uxy प्लस ivxy, द नेसेसरी कंडीशन इज this function f z is equal to uxy plus ivxy is said to be analytic in a region R. ये किसी एनालिटिक किसी रीजन R में कहलाएगा अगर क्या u और v के
यू और वी के 4 पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ एग्जिस्ट करने के साथ साथ ये कंटिन्यूअस हो, और ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव आपस में एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी कि डेल यू बाय डेल एक्स जो है वो डेल वी बाय डेल वाई के बराबर हो, डेल यू बाय डेल वाई जो है वो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर हो। अगर ऐसा है कि डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई के बराबर है और डेल यू बाय डेल वाई माइनस डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर है, अगर ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये कहलाएगा कि कॉशी रीमान, इसी इक्वेशन को हम कॉशी रीमान इक्वेशन बोलते हैं, इसी इक्वेशन को, इसी दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉशी रीमान इक्वेशन। देन वी कैन से दैट कि अगर ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन एब्जेड इसी रीजन आर में एनालिटिक है, इसका मतलब कि यू और वी के 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और साथ ही साथ वो एक कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू डेल यू बाय डेल वाई के बराबर होगी और डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल यू डेल एक्स के बराबर होगी। ये है नेसेसरी कंडीशन फॉर टू बी एब्जेक्टिव। यही चीज जब हम सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं तो इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है। क्या सफिशिएंट कंडीशन में सिर्फ क्या हो जाएगा, सफिशिएंट कंडीशन में जो चीज हमने नेसेसरी कंडीशन में मानी है वो हम वहां प्रूव करेंगे, और जो हम नेसेसरी कंडीशन में प्रूव करते हैं वो यहां हम मानते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर सफिशिएंट कंडीशन पे क्या हो जाएगी कि अगर u और v के 4 पार्शियल डेरिवेटिव मिल करके कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई के बराबर है, डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर है, अगर u और v के 4 पार्शियल डेरिवेटिव मिल करके कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और साथ ही साथ ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं, तो अगर ये चीज यहां पर हम माने देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस आई वी एक्स आई, दिस फंक्शन इज एनालिटिक। तो वहां पर हमने नेसेसरी कंडीशन में ये बात मानी थी कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो कॉशी रीमान 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, ये हम वहां प्रूव करते हैं। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन में हम ये मानते हैं कि 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई है, तब हम ये प्रूव करेंगे कि नहीं फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस आई वी एक्स आई एनालिटिक होगा। सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करते हैं, वो रिजल्ट क्या है, एफ डैश जेड